Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss about the most common aromatic electrophilic substitution reactions. So the first one is some of the most important electrophilic substitution reactions are halogenation reactions, sulfonation reactions, nitration reactions, and Fredekop reactions. So the first one is halogenation of benzene ring. तो ज़्यादातर अरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट किया जा सकता है. सो हेलोजिनेशन रिएक्शन इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So you can see this is benzene ring and Br2 is a halogenation reaction, and it is taking place in the presence of FeBr3. So the bromine may attach with the ring and replacement of a proton from the ring, and thus a substitution reaction may occur. The mechanism of the substitution reaction is the Br2 and FeBr3 both react together. इसमें क्या है कि lone pairs of electrons फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे और as a result न्यू बॉन्ड बन जाएगा और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. फिर जो है अब ये होगा कि चूंकि Br पॉजिटिव विच इज़ मोर रिलेटिव नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड्स इस डायरेक्शन में ब्रोकन डाउन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. एज ए रिजल्ट ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव ब्रोमीन विल अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ द रिंग, विच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द areninium ion, and bromine will attach itself and FeBr negative. While in the second step, one of the proton will be replaced from the areninium ion with the help of FeBr4, which results the formation of the the restoration of the pi bond system, and which also yield the final substituted product. HBr will be also produced during the reaction, and as FeBr3 was acting as a catalyst, so that's why FeBr3 will be restored again. Next one is sulfonation reaction. Sulfonation reaction is the replacement of a proton from the ring by sulfonic acid group, is known as sulfonation reaction, and it is taking place in the presence of a sulfuric acid, two molecules of sulfuric acid. One will be acting as a catalyst, the other one will be acting as a reagent. So this product may be obtained, and what will be the mechanism? So these are the two molecules of the sulfuric acid, and you can see the structural formula of the sulfuric acid. This sulfuric acid will जो है ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में will provide a proton, और ये वाला sulfuric acid will provide the hydroxyl group. प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में बॉन्ड बना के H2O बना देंगे, और इसी तरह यहाँ पे HSO4 बनेगा, और साथ जो है SO3 H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा. Now as it is an electrophilic substitution reaction, so SO3H will be acting as a electrophile, and you know electrophile will attack on the pi electron system of the benzene ring, which results the formation of the intermediate areninium ion, and the areninium ion will be have HSO4. This will be acting as a conjugate base, and it will replace a proton from the ring, which results the restoration of the pi bond system of the ring, and results the formation of the final product, and H2SO4 will be restored because it was a catalyst. Now we will discuss a third reaction, that is the nitration reaction. Nitration of the benzene ring. So इसमें है benzene ring है हमारे पास, the reaction taking place in the presence of HNO3 and H2SO4. HNO3 acting as a nitrating agent, H2SO4 will be acting as a catalyst. So जो है nitrogen NO2 जो है as a nitrating agent will attach with the ring, and H2O will also be released during the reaction. तो इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे रिंग के साथ खुद को अटैच करता है. ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो जितने इलेक्ट्रोफाइल हैं, अगर आप इससे पहले कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिंग के साथ अटैच ना हो, तो पहला इलेक्ट्रोफाइल के लिए तमाम के तमाम पोजीशन एक जैसे होते हैं. लाइक NO2 किसी भी पोजीशन के साथ NO2 अटैच हो सकता है, किसी भी पाई बॉन्ड के ऊपर NO2 जो है अटैक कर सकते, और आपको मोनो नाइट्रोबेंजीन जो है वो obtain हो सकता है. Now the reaction mechanism of the nitration of benzene. So in the first step formation of nitronium ion बनेगा,
किस तरह बनेगा, H2SO4 HNO3 आपस में रिएक्ट करते हैं, ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में OH नेगेटिव, इस डायरेक्शन में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2O बना देगा और साथ HSO4 नेगेटिव एज ए कंजुगेट बेस बन जाएगा और NO2 जो है एज अ इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। नाउ अटैक ऑफ द नाइट्रोनियम आयन ऑन द रिंग, अब ये जो मेरे पास नाइट्रोनियम आयन है ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं, तो दिस विल अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ द रिंग एंड विल पुश द इलेक्ट्रॉन एट वन साइड, so as a result this will push electron in this direction, this position will have negative and NO2 have positive, so this amine bond will be obtained and this position will have positive charge, so intermediate nitronium ion will be obtained. Now अब क्या होगा, areninium ion will be obtained, sorry. Now क्या होगा, अब मेरे पास जो है ये जो बेस है, कंजुगेट बेस जो है वो यहाँ से एक प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा और यहाँ से प्रोटॉन रिप्लेस करने के बाद इस पोजीशन पे नेगेटिव और एडजस्टमेंट पे चूँकि पॉजिटिव है तो पाई बॉन्ड की रिस्टोरेशन हो जाएगी और मेरे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और नाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे आप खूब उससे वाकिफ़ है, बल्कि इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैं मैकेनिज्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ। द लास्ट वन इज़ फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन जो है बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के अंदर कैरिड आउट हो सकते हैं और फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में ये है कि अल्काइल ग्रुप वन ऑफ द प्रोटॉन विल बी रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप फ्रॉम द रिंग, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप रिंग के साथ खुद को अटैच करते हैं, जबकि एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में असाइल ग्रुप जो है वो रिंग के साथ खुद को अटैच करते हैं। सो दिस इज द फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और यूजुअली अल्काइलेशन रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड अ कैटलिस्ट दैट इज Lewis acids or AlCl3। तो AlCl3 will be acting as a catalyst और RCl जो है एक अल्काइल हैलाइड है वो रिएजेंट के तौर पे। तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है इस डायरेक्शन में ब्रोकन डाउन होगा और यहाँ पे R पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर अटैक करके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना देगा, सारी सील बनेगी और AlCl3 जो है चूँकि कैटलिस्ट है वो स्टोर होगा। इसका मैकेनिज्म यही है जो बाकी मादा के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह एसाइलेशन रिएक्शन में टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल हैलाइड एंड AlCl3 व्हिच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और इसका मैकेनिज्म भी वही है जो कि बाकी मादा के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।